I think we are on live now. So let's start with today with the thought that we are today in a virtual space. मतलब हम एक virtual space में हैं, but so many people who have come from all the way, because मैं देख रहा था registration, and people have come from very different directions. People have come Guwahati, people have come from Mumbai, Delhi, Jaipur. A lot of people have come. So I would request everybody to type where are you from, write your name and you are from which place. Write your name and on the chat box down, write where are you from and can you hear us? Can you see me? Can you see Mr. Chaudhary? So write your name, write your place and can you see us? Vinayak from Calcutta, Tanya from Mumbai, Altaf, Akshat, Manoj, Namita, Harsh from Hyderabad, Harsha, Manu Jindal from Jaipur. There are people from all over. Nintin Bhatia from Bangalore. Okay. Ritika from Jaipur. Wonderful. I think quite a number of people have joined today. So while we have joined this Sabina Rao, joined from Bangalore, Shibani Rao, okay, from Bangalore. Sorry if I'm not reading right names because it's too small on that thing coming up. So a lot of people have joined. Ankur Tiwari from Jaipur. Ankur, wonderful Ankur to join in. Ankur was there in last Mindfulness India Summit also. Okay, wonderful. So I think today a lot of people have joined. And before we start our today's day, since it is a subject is mindfulness, can't be a better start to give a minute of being mindful of what we are going to do. Leave our all thoughts, judgments, expectations, all our inhibitions, fears, anxieties outside the door or on the side and just see your own self for 1 minute. Okay, just be with your own thought completely as a child who's gonna be getting some new toy today, but with no expectation. See what's your intention, what's your expectation. Just leave everything and see yourself completely with the new light. Take a deep breath in and feel the breath coming in your body, and then gradually just let it go. And stay like this for a few more seconds. You can feel your body, you can feel your heartbeat, you can feel the air coming from the fan or any bodily sensation. Just feel it. Stay like this for a few more seconds. Stay in this stillness if you can. And now take a deep breath in and let it go from your body, saying, and let's start our day. Start our day, which I said, because today is a interesting day, which is today is the evening. So today afternoon we are discussing. So the day start whenever jab jage tab savera. Right. तो माइंडफुलनेस एक ऐसी जाग है, इस अवेकनिंग है, एक अवेकनेस है. You know, I was thinking during these COVID times, I spoke to Chaudhary ji quite a bit of time, and we know that how things were going. You know how different we look from outside, be our caste, color, religion, ethnicity, education, social economic differences, but there are few things very common for all of us, and these few things are: we all wanted to be happy, we all want to become a good leader,
We all wanted to improve our workplace. We all wanted to become a better life, help transform society and environment. Tell me, any of you don't want to do these things? So I don't think so. There will be anybody that who would not be agree to that they would not like to do these things. We all are good and social human being, and most important thing, we can't live in isolation forever. This isolation is not for us because we don't become social now. So today's topic of discussion is importance of mindfulness at workplace, and how better time would be than the COVID when the situation is so difficult. Now, it's a unique time in the world, and saying unique time is actually understatement, sir. We Right. all are collectively grappling with a global pandemic. Means that it's for the humankind. This is the first of its kind to happen in our lifetime, which we are experiencing. Also, as a professional, as a human, we are experiencing, but as a professional, we have very different experience. It may not have experienced by the past humanities so far, and organizations are going through a difficult time. People are going through a difficult time. Different organizations are operating in a very different manner, and they are trying to do more short-term policies, short-term measure than to plan a long-term, because today the long-term situation working is not happening. Right. uh, Workplace leaders, so you will agree that workplace leaders are finding themselves in unseen challenges of pandemic. Stress, anxiety, pressures, mental well-being are the few which are the people are going through. During my latest conversations with mindfulness and emotional intelligence teachers, scientists, trainers, coaches, it is clear that there are two basic things which everybody is suffering. One is fear, and second is uncertainty. These Right. two things are rising anxiety and stress among the people. In recent days, we have heard from a lot of CEOs, business leaders who took mindfulness as a dedicated practice to help them live their best lives and Right. empower themselves to be the change agent needed for their move to move their organizations forward. That is a time people have actually shifted now, taken a mindfulness as the mandate to not only to change themselves but also bring change within the organizations. And for leaders it's especially important to make organizational well-being a priority. As a leader, you know that organizational well-being is your priority, and that is Right. why we want to hear leaders like you and experts who have actually done it, who can share their success stories and show how they have been done, what inspires, and what next steps to be taken. I, as a mindfulness teacher, I can tell you mindfulness, but as you as an entrepreneur, you are taking it to the people. So today, ladies and gentlemen and my friends, we have Mr. Nandkishore Chaudhary, who is a social entrepreneur. Just give you a little bit of your introduction. Who's the founder of and managing director of Jaipur Rugs, India's largest manufacturers for the hand knotted rugs. And in fact, I was reading about you. You are addressed as a Gandhi for the carpet industry, which is, I think, this is a great honor to be called Gandhi in today's time. We're looking for Gandhis in this time of difficulty. Starting from 1978, from the two people and with a small setup, and now today you have about 40,000 artisans around 600 villages. And I think I would say that this journey of 4 decades, it's an amazing journey of love, compassion, and which you have written also as a perseverance. So many thanks today for joining us and taking us time and giving your thought. So I think not taking too much of time about building this thought, we all understand this thing. I'll ask you one simple question, sir. Haji. Before any question, I definitely coming to the question because I think वो प्रश्न में ही सब कुछ छुपा हुआ है बात आपकी. Haji. So coronavirus has brought challenge to many industries. We have a Haji. lot of people joined. I did one, in fact, a lot of people from travel industry joined in. We did one talk for the travel agents in a hospitality industry, and we know that what kind of pain they were going through. How it has impacted your organization and industry as specific, and what measures did you took to deal with today's situation? So let's start with that, and then little bit about your own self also, sir. Right. देखिए
मनीष जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि जब मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत हुई जी तो जैसा आपने बोला कि इतिहास में, अपने इतिहास में पहले कभी इस तरह से नहीं आया समय। जी तो मैंने 5-7 दिन बाद देखा कि सारी एक्टिविटी बंद हो गई, बाहर आना जाना बंद हो गया। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये मेरी एक नई यात्रा की शुरुआत है। हम्म और मेरी जो बाहर की दौड़ थी और मैं अपनी अंदर की यात्रा पे जाना चाह रहा था, हम्म तो शायद इससे अच्छा कोई मौका मिलेगा मिलेगा नहीं मेरे को। हम्म तो मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया, अपनी कॉन्शियसनेस को जाना, अपनी आदतों को जाना। और काफी इसके बारे में मैंने पढ़ा लिखा, सोचा। तो आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो पिछले 4-5 महीने में मैंने अपने आप पे जो किया किया काम, आज हमारी कंपनी के भी कम से कम 40-50 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जी आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं जिस तरह से अपने बिजनेस को देखता था, अपने हम्म लोगों को देखता था, अपने आप को देखता था, मेरे देखने के ढंग में कितना परिवर्तन आया है। जी और मेरी एफिशिएंसी माइंडफुल होने से कहां चली चली गई है। और मेरे जो कंपनी के लोग थे, अब जिनको मैं जिस तरह से डील करता हूं, पहले मैं रिएक्ट करता था, अब मैं उनको रिस्पॉन्स दे पाता हूं, अच्छी तरह उनको कोच कर पाता हूं, अपनी बात को अच्छी तरह से रख पाता हूं। और मुझे माइंडफुलनेस से ये भी मुझे समझ में आया कि पहले मैं इतनी जल्दबाजी करता था ना, ऑटो पायलट मोड में रहता था। तो बहुत सारे जो गैप्स थे वो मुझे दिखाई नहीं देते थे। जी तो मैं देख रहा हूं कि मतलब मेरा तो एक तरह से पूरा जीवन ही बदला। परिवार के सारे लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मेरी वजह से परिवार के लोगों में भी बहुत ज्यादा फर्क आया। और बिजनेस की एफिशिएंसी में इतना ज्यादा फर्क आ रहा है, एंड एवरीबॉडी स्टार्ट चेंजिंग। तो मैं बताऊं कि माइंडफुलनेस मेरे खुद के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए मतलब कितनी जरूरी है। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आप 4 महीने में ये बात जान पाए। डेफिनेटली इस जर्नी में आप पहले से, ये आपकी बड़पन है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ 4 महीने की जर्नी है। ये जर्नी आप डेफिनेटली एक लंबी जर्नी जी करके आ रहे हैं। एक गीता में एक प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे पार्थ, कि ये उन लोगों का क्या होगा जो अपनी जर्नी पे चले पर फिर भटक गए, फिर आगे नहीं जा पाए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखिए, कोई भी आदमी अपनी जर्नी से भटकता नहीं है, भूल जरूर जाता है, बट वो जहां से भटका फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी आप राइट। कर्म कर रहे हैं वो लॉस्ट नहीं हो रहा, वो सही जा रहा है। तो हम कभी भी अपनी जर्नी है वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज स्टार्ट, जैसे हमने स्टार्ट करी। एंड आपका जो एक एक्सपीरियंस ऑफ माइंडफुलनेस का जो आप शेयर कर रहे हैं इतने सारे लोगों पे, डेफिनेटली एक पॉजिटिव इफेक्ट है जो आप अपने में एक्सपीरियंस कर रहे हैं और धीरे धीरे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी ला रहे हैं। एक छोटी सी definition which we are usually called that, mindfulness allow you to recognize how mind works. It's basically tells you that how my mind is working. That राइट। means that you understand that you can lead yourself, which allows you to perform better. Means that हम अब समझ पाते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे कर रहा है, and which allow us to understand ourselves. Most of the time we do not have our own understanding. you know राइट। our behavioral conditioning is such that till age of 35 we know everything possibly, and राइट। post that we do not wanted to accept that there is anything else left to be known more. राइट। Because we think that now I know everything, so we become Mr. I know. मैं एक ऐड आ रहा था पिछले दिनों, उसमें दिखता था हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। वो पता हमको सब कुछ है, बट एक्चुअली करना बहुत डिफिकल्ट काम है। राइट है। सो अब जैसे आप कह रहे हैं कि आप माइंडफुलनेस में चेंज ला पाए, तो हाउ डू यू डिफाइन as a mindful leader, what role actually you're going to be playing when you understand that, now I have awakening as a mindful leader? And so can you define that? What is that you change you feeling within yourself? And how do you think a mindful leader should act? देखिए, मैं जो अपनी माइंडफुलनेस पे जो काम कर रहा हूँ और मैं जो अपने में चेंजेस देख रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह डिफाइन करूंगा कि एक जो माइंडफुल लीडर है, जैसे जैसे माइंडफुलनेस आती जाएगी, जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, आप
आप दिन में जो भी सोचते हैं, आप दिन में जो काम करते हैं, आप जिस तरह से बिहेव करते हैं, उसके पीछे एक एक कॉन्शियसनेस आ जाएगी। इतने दिन आप उसको अनकॉन्शियसली कर रहे थे, आदत की वजह से कर रहे थे, तो आपको ये समझ में नहीं आता था कि आप जो बिहेव कर रहे हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं, उसका दूसरे पे क्या फर्क आ रहा है। और सब लोग, मैं गुस्से में हूं, मैं रिएक्ट कर रहा हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, तो मेरी हेल्थ पे, मेरी मेंटल हेल्थ पे, बॉडी हेल्थ पे क्या फर्क आ रहा है। पहले आप उसको देख नहीं पा रहे थे कि मेरे बिहेवियर से मेरे पे क्या फर्क आ रहा है, दूसरे पे क्या फर्क आ रहा है। फिर आप अपने आप काम करते हुए आप अपने आप को देख देख पाते हैं, और इससे आपके काम की क्वालिटी इतनी भारी बदल जाती है कि आपकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो वेस्ट होनी रुक जाती है, और आपके अपने जो स्टाफ है, आपके कंपनी के जो लोग हैं, उनको आप एक सही दिशा देने में सक्षम हो जाते हैं। सर, ये डेफिनेटली आपने एक पॉइंट रखा कि इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब अपने आप को देख पाते हैं कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम उस जो हमारा रिएक्शन बिहेवियर है उससे रुक जाते हैं, और हम उस गैप को देख पाते हैं कि हमें कब चेंज करना है, हमें क्या गलत कर रहे हैं। ये बहुत एक कहने में आसान है, बट करने में आपको क्या लगता है आसान है, और क्या हर आदमी कर सकता है इसको? देखिए क्या है कि अभी मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 2-3 साल से काफी कोशिश कर रहा हूं कि मतलब माइंडफुलनेस विद द टॉप प्रायोरिटी ऑफ जयपुरक। अगर कोई मेरे को पूछे कि जयपुरक की टॉप प्रायोरिटी क्या है, तो मैं यही बोलूंगा, मतलब माइंडफुलनेस होना ही सबसे टॉप प्रायोरिटी है। क्योंकि मनीष जी, मेरे को ये समझ में आया कि हम लोग अभी भी कंपनी के अंदर जो 60-70% जो एक्टिविटीज करते हैं, जी वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। जी तो वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कोई स्टाफ का आदमी या मैं खुद जानबूझ के नहीं करता हूं, जी क्योंकि मैं माइंडफुलनेस नहीं हूं, तो जी मुझे उस एक्टिविटी करने के पर्पज का मालूम नहीं है। जी तो मैंने 2-3 साल में बड़ी कोशिश की है, जो 60-70% जो समय मेरे लोगों का जो खराब जाता है, जी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में जाता है, उनसे स्टाफ का कैरियर भी आगे, वो भी अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जी और कंपनी को भी एक काफी लॉस हो रहा है। जी तो उस पे मैंने काफी काम किया। तो शुरू में तो मैं सोचता था कि मैं अपने पे काम करूंगा तो शायद पूरी कंपनी में चेंज आ जाएगा, मेरे को देख के सब लोग बदल जाएंगे। जी लेकिन फिर मैंने ये समझ में आया कि खुद पे काम करना, खुद को रोकना, खुद को शांत करना, शायद ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। जी जी अगर मुझे दूसरे को माइंडफुल बनाना है तो ये मेरे लिए बड़ा इजी है कि मैं उसको शिक्षा दे दूंगा, लेकिन मैं खुद को जब माइंडफुल बनाने की बात आएगी तो उसमें मैं नहीं जा पाऊंगा। तो हम 2 साल से काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। जी इसीलिए अंकुर, जब आप जो इंडिया में जो इतनी शानदार कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो मतलब इंडिया के लेवल से बहुत ऊपर की चीज, मैं तो बोलूंगा इसको, उससे धन्यवाद। मुझे बड़ी मतलब एक हिम्मत हिम्मत मिली कि इंडिया में भी ऐसे कोई लोग हैं जो माइंडफुलनेस को सोचते हैं। और आज ये जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसपे बहुत कम समझ है, तो जी अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह हम लोग जी माइंडफुलनेस हमारे लोगों में लाए, किस तरह मैं उनको समझाऊं, किस तरह उनको माइंडफुलनेस बनाऊं। लेकिन ये मेरा पक्का विश्वास है कि जो इनमें माइंडफुलनेस आती जाएगी, मतलब जी वो एक ऐसी ऐसी यात्रा शुरू शुरू हो जाएगी जी कि जिसके अंदर मतलब हर चीज की बढ़ोतरी है। जी एक ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि माइंडफुलनेस की जो यात्रा है ना, जब एक बार तो एक कहानी ऐसे आती है सर कि एक आदमी गया, वो प्रसाद मांग रहा था, तो उसने बोला कि आज ऐसा व्रत है हमारा, प्रसाद हम नहीं खाएंगे। तो अच्छा जी। उसने बोला अच्छा, हमारा हम भी व्रत रख लेते हैं। तो जब व्रत रख लिया उसने, तो दोपहर को बहुत भूख लगी, तो उसने बोला भाई मुझे भूख लगी है। तो उसने बोला कि अब तो खाना आराम शाम को ही मिलेगा आपको। उसने बोला कि भाई पहले तो आप सुबह दे रहे थे मुझे खाना, तो तब तो आप व्रत नहीं था, पर जब मैंने व्रत रख लिया अब आप मुझे खाना नहीं दे रहे हो। उसने बोला देखिए ऐसा है कि तब आप इग्नोरेंट थे, मतलब आपको पता नहीं था कि व्रत में खाना नहीं होता। अब आप नोन हो, यदि आप नोन होकर के खाते हो तो दैट इज योर रॉन्ग इंटेंशन। तो राइट। अब आप तो जब हमें समझ आ जाती है सब्जेक्ट के बारे में, तब हम इंटेंशनली गलती करते हैं, अनइंटेंशनली गलती नहीं करते। तो अनइंटेंशनल गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, बट इंटेंशनल गलती आप खुद ही अपने आप को माफ नहीं कर पाते लाइफ में। तो ये जर्नी सर एक ऐसी इंपॉर्टेंट जर्नी है, आई थिंक जितनी जल्दी हम स्टार्ट कर दें उतना हमारे लिए फायदा है, बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू चेंज
these behaviors जो हैं हमारे अंदर, जो हमारे जीनोमिक्स और हमारे एक्वायर्ड बिहेवियर, जीनोमिक्स मतलब जो हम जीन पूल से लेकर के आ रहे हैं बिहेवियर्स को, और जो हमारे एक्वायर्ड बिहेवियर जो हमने अपने कुछ सालों में एक बिहेवियर जो एनवायरनमेंट से कैप्चर करें हैं, वो इतने आसान नहीं है हमारे में बदलाव लाना। उसमें एक लगातार एफर्ट करना पड़ता है। ये एक मार्शल आर्ट जैसा है जिसको आप रोज आना प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं माइंडफुलनेस क्या है, मैंने बोला, मैं बताता हूँ कि माइंडफुलनेस है जैसे सुबह ब्रश करना। आप रोज भूलते नहीं हैं, और जब आप भूल जाते हैं तो आपको लगता है कुछ मिस हो गया घर में, आप जाके कुछ खाते हैं जाकर के, भाई मेरे मुंह से स्मेल आ रही होगी, क्योंकि आ भी नहीं रही होगी, हो सकता है। तो ये माइंडफुलनेस ऐसा है वो कि आपको भूलना नहीं है, और वो अपने अपने बिहेवियर में बिल्ड कर लेना है कि जिस दिन भूल गए तो उस दिन उसका कुछ ना कुछ आपको, भाई आज मैं भूल गया हूँ ये कुछ, तो मुझे इसके लिए ये करना है। सो माइंडफुलनेस की हम बोलते हैं माइंडफुलनेस लेफ्ट ओवर टेक्निक, मतलब यदि हमारा भूल गया माइंडफुलनेस तो आज मुझे उसको क्या करना है। तो इतना ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक लार्ज सेक्शन इसके ऊपर काम कर रहा है। आज हम न्यूरो साइंटिस्ट की बात करें, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूरो साइंटिस्ट और पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट इस सब्जेक्ट पे बहुत बहुत डीपली काम कर रहे हैं, और वो पा रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने आज माइंड में अपनी लाइफ में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड किया है, वो वाला मैचिंग कर देना साइड बाय साइड। हाँ कर। आई थिंक आप रिक्वेस्ट करता हूँ सबको म्यूट कर लें। ओके, तो आई थिंक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। तो ये माइंडफुलनेस का सर सब्जेक्ट ऐसा है कि ये इस जर्नी पे हमको रोज जाना पड़ता है, और ये कल्टीवेट करने के लिए एक नेता की जरूरत होती है, जैसे आप हैं, आप गाइड कर रहे हैं लोगों को, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है हमें इस लाइफ में। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बहुत अच्छी तरह से ला पा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, नाइक है, जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं आज अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला पाए हैं। जैसा आपने कहा कि ये एक आर्ट ऐसा है सर कि इसको पहले आप अपने में अंदर लेके आते हैं। जैसे हम प्लेन में बैठते हैं, so the first instruction comes that when there will be a turbulence, there will be the masks coming out down. पहले आप अपना मास्क पहने, फिर दूसरे की सहायता करें। So the importance is that how you start first learning mindfulness, you become mindful, and then you can bring mindfulness to others. Coming to that point, sir, what kind of changes do you think you are seeing now while you are bringing mindfulness to your organization, to your home? What kind of changes you are seeing with people? देखिए, जैसे जैसे मेरे में माइंडफुलनेस उतरती जा रही है, जैसे जैसे मेरी गहराई बढ़ती जा रही है, तो आज तक मैंने जितनी भी समस्याएं अपने जीवन में देखी, जो परिवार में देखी जी, और बिजनेस में देखी, कि जितनी भी जो समस्याएं हैं, गैप है, उन सब का जो जड़ है, मतलब उसका जो रूट काज है, वो है माइंडफुल नहीं होना। जी, जब अपने बिना पर्पज के कोई एक्टिविटी करते हैं तो अपने बेहोशी के शिकार होते हैं, अपनी आदत के शिकार होते हैं। तो अपने करते वक्त ये मालूम नहीं होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जी, तो मैंने देखा है कि मेरे जीवन की, परिवार की, बिजनेस की जितनी भी समस्याएं हैं, उनकी जो रूट है, उनका रूट ही माइंडफुलनेस नहीं होना है। जी, और जो ही मेरे में माइंडफुलनेस आई, मैं उनकी रूट को समझने लग गया कि कितनी सारी समस्याएं जो कॉन्शसनेस से हैंडल नहीं की, और आज जाके वो एक कितनी बड़ी समस्या का रूप बन गई। जी, तो मैंने देखा है कि मेरे लिए अब किसी भी समस्या के रूट में जाना बड़ा इजी होता जा रहा है, क्योंकि अब मैं देख सकता हूं कि ये जो समस्या बनी है, ये कितनी सारी समस्याओं को मिलके ये इतनी बड़ी समस्या बन गई। जी, और अपने जो लोग हैं जो उस समस्या को निपटाने पे काम कर रहे हैं, उनको भी मैं माइंडफुलनेस सिखा रहा हूं, उनको भी ये बता रहा हूं, तो वो भी उस समस्या के अंदर जाके ना उस समस्या का सही ढंग से समाधान निकाल पा रहे हैं। लेकिन अभी तो क्या मनीष जी, एक जर्नी है। मैं सोच रहा हूँ ये जर्नी अगर और गहरी लेके चला जाए, आपके जैसे कोई जी, लीडर मिल जाए, आपके जैसे कोई गुरु मिल जाए, तो इस जर्नी में तो मतलब इतना बड़ा ये इट इज ए गोल्ड माइन। जी। इस सर हमारी जर्नी, हम आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं जितने भी लोग माइंडफुलनेस पे काम कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं,
हमारा 2 ऑर्गेनाइजेशन माइंडफुलनेस इंडिया समिट जो दुनिया भर से लोगों को लेके आता है और माइंडफुलनेस के बारे में सब्जेक्ट में साइंस पे हम लोग बात करते हैं, और माइंडफुलनेस साइंस सेंटर जो रिसर्च कर रहा है प्रोग्राम्स के ऊपर। सर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि माइंडफुलनेस एक सब्जेक्ट ऐसा है सर कि ये खाली हम माइंड की बात करते हैं, बट ये बहुत गहरा सब्जेक्ट जैसा आपने बोला। इट नॉट ओनली इफेक्ट्स योर माइंड बट इट ऑल्सो इफेक्ट्स योर psychology. It also affects your physical body, so it improves your physical body. It not only helps you to be very healthy mentally but it also help you be mentally physically. But लोगों को Right. ये बात धीरे धीरे समझ आनी स्टार्ट होती है कि how of mental health is connected with your physical health and how your physical health is connected with your mental health. Right जी. And what happens, the mindfulness provides you with that sharper focus. एक जो हमारी एक एबिलिटी टू फोकस ऑन सब्जेक्ट है वो कम होती जा रही है। आप देखें कि आज के टाइम में हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और लगभग सभी लोग हमारा अटेंशन चोरी करने के में लगे रहते हैं। कोई सोशल मीडिया है, कोई टीवी है, कोई न्यूज़ है, सबको हमारी अटेंशन चाहिए। सो अटेंशन क्या है, आज की डेट की सबसे महंगी करेंसी है सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उस किस पे खर्च करते हैं, आपको लगता है फ्री करेंसी है मेरे पास, आपकी मर्जी है आप किस पे खर्च करते हैं। आप अपने काम पे खर्च करते हैं, आप अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं, आप अपने स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, आप किस पे वो अटेंशन खर्च करते हैं, आपको वही मिलेगा। आप सोशल मीडिया पे खर्च कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया मिल जाएगा आपका, बिकॉज वो यूज़ कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस क्या करता है सर, मैं नहीं कह रहा कि क्या सोशल मीडिया गलत है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आप डिसाइड करने वाले बन सकते हैं कि आप अपनी फोकस अटेंशन कहाँ खर्च कर रहे हैं। आप और आप फिर उसके बाद ऐसा है सर कि एक तालाब है, ठीक है, और उस तालाब में लगातार तरंगे उठ रही हैं। राइट जी। और मैं उस तालाब का यदि किसी को कहता हूं कि उसका धरातल जो है, उसका तल है, उस पर क्या है देख के बताएं, तो कोई बड़े आराम से नहीं बता पाएगा। तो उसको कुछ समय वेट करना पड़ेगा, जब तरंगे रुक जाएंगी तब आप उसको नीचे देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा दिमाग है, लगातार चीज़ों से, फोकस से, हमारे बिहेवियर से उसमें तरंगे उठती रहती हैं। इसलिए हम अपने जो बुद्धि है, अपनी जो इंटेलेक्ट है, उसको हम क्लियरली देख नहीं पाते, एंड वी कैन ओनली सी दोज वाइब्रेशंस, दैट वेव्स, but these waves are not permanent, they are temporary, they just come and go, but the bottom of that lake or pond is going to be there with you all the time. But the problem is that we constantly busy in that waves, we are not able to take the right judgment of the bottom, and that is the reason we are not able to make a good decision making. Now sir, right. आपने इतनी जर्नी करी और आप अब इतना, तो आप अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लग रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी जिससे आपको बेनिफिट मिला, हाउ अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम यू? देखिए, अभी हमने वो एक डीप वर्क किताब है, आप भी जानते हैं उस किताब के बारे में, बहुत फेमस है जी। वो किताब पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये जो सालो वर्क है, सेलो वर्क, ये ही सबसे ज्यादा ना ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान उठाता है। एक आदमी की लाइफ को भी सेलो वर्क बहुत ज्यादा डैमेज करता है जी। तो उसके बाद में हमने भी कुछ ट्रेनिंग सेशन वगैरह भी उसके डिजाइन किए, हमारे लोगों पे थोड़ा प्रयोग भी शुरू किया है मैंने, कि कंपनी का हर आदमी सेलो वर्क नहीं करके फोकस होके डीप वर्क करे। और उस दिन आपसे फोन से बात हुई थी कि अल्टीमेटली वो फ्लो स्टेज में भी जाने शुरू हो जाए जी। क्योंकि जब फ्लो स्टेज में जब आदमी चला जाता है तो उसके काम की तो क्वालिटी को कोई सोच भी नहीं सकता। एक आदमी एक दिन में इतना काम कर देता है जो मतलब 1-2 महीने में भी वो नहीं कर पाता है। तो अभी मेरा जो पूरा फोकस है जयपुर रख के लिए कि मुझे ईच एंड एवरी आदमी को माइंडफुल बनाना ही बनाना है, मतलब जी। इसको मैं नॉन निगोशिएबल बनाने वाला हूं। अभी हम जितने भी लोग जो पिछले महीने 6 महीने में 12 महीने में जितने भी लोग रिक्रूट किए हैं, ऐसे ही लोगों को रिक्रूट किया है जो माइंडफुलनेस की डीप वर्क की भी जर्नी पे जाना चाहते हैं। तो फ्यूचर में मतलब कोई भी आदमी अगर डीप वर्क में माइंडफुलनेस नहीं होगा तो शायद जयपुर में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। सर, आप
कारीगरों के साथ, आर्टिशंस के साथ काम करते हैं, एंड क्रिएटिविटी एंड माइंडफुलनेस आर वेरी deeply connected with each other. You know that you cannot be creative if you are not mindful, and that's true. You have to Right. go in the flow. You have to go with your own zone to work, and our performance is all dependent on how much we focus. You know, it's said that your life depends on what you focuses on. हमारी जीवन Perfect. जो है उसी पे डिपेंड करता है हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं. गलत चीज पे Right. फोकस करेंगे, जीवन गलत धारा में बह जाती है. सही चीज पे फोकस करते हैं, हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं. तो क्रिएटिविटी में जैसे जितने आपके लोग काम कर रहे हैं जो क्रिएटिव हैं थॉट प्रोसेस में, डू यू थिंक दे कैन बेनिफिट इफ दे रेगुलरली डू माइंडफुलनेस? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्रिएटिविटी ओनली थ्राइव्स इन ए रिलैक्स मैनर. आप क्रिएटिव तभी होते हो जब आप रिलैक्स होते हो. और मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्रिएटिविटी का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो माइंडफुलनेस नहीं होना है. जितना एक आदमी ऑटो पायलट मोड में है उतनी उसकी क्रिएटिविटी चली जाती है. मैं आपको बताऊं कि हमने हमारे जो मन चाहा प्रोजेक्ट जो शुरू किया, हमारी जो महिलाएं हैं, जो वीवर महिलाएं हैं जो कभी स्कूल नहीं गई, पढ़ी लिखी नहीं, उनको हमने बोला कि आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए और आप अपने खुद के डिजाइन के कारपेट बनाइए. और जब बेटी ने ऐसी ही महिलाओं को चुना जो जिनके अंदर माइंडफुलनेस थी, शांत थी, और मनीष जी पिछले 3 साल में उन महिलाओं को उन्होंने 7 ग्लोबल अवार्ड जीते हैं. मतलब ऐसी महिला जो कभी स्कूल नहीं गई, उसको मालूम नहीं डिजाइन कॉलेज होता क्या है. तो मैं आपको बताऊं कि एक बिना पढ़ी लिखी महिला माइंडफुल होके इतना भारी काम कर सकती है. तो हमारे ऑफिस में आज जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, वो तो माइंडफुल हो जाएंगे तो पता नहीं क्या से क्या, मतलब वो एक नया भविष्य बना देंगे. जी जी, ये बात बिल्कुल सच है सर कि मैं खुद इस बात को जानता हूँ क्योंकि 25-30 साल में एक सीनियर ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करा और मैंने देखा कि जो हमारी एबिलिटी ऑफ वर्क है वो हमेशा 2 चीज़ों से दबी रहती है. एक डर से, और दूसरी हमारी ऐसी भावना जो हमें नकारात्मक देती है, which is we call it negative thought process. One is a fear and negative thought process. That these are the 2 basically hindrances for our both personal and team growth. You know, we are not able to build trust with each other. We do not be able to build that empathetic approach. So it is very, when I start teaching, I tell them that if you are always fearful, if you are always negative, you are always rigid. ये रिजिडिटी के और क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस में यदि आप रिजिडिटी को डाल देंगे तो आप क्रिएटिव और प्रोग्रेस हो नहीं सकते. तो आप रोज एक ही डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद कुछ बना ही नहीं सकते, बिकॉज आपकी मानसिकता इतनी रिजिड हो जाएगी कि वो उसमें नए फूल नहीं खिल सकते, उसमें नई क्रिएटिविटी नहीं आ सकती. सो और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है एक्सेप्टेंस एंड नॉन जजमेंट. When I do not accept others as it is, when I do not accept things, I only want to do things my own way, that brings an attitude of non-acceptance. So mindfulness, what it do, it actually allows you to accept things, right, learn new things, Bilkul. accept others with compassion, right, understand that other person is also human. He may be going through the same emotions as I may go. He maybe get angry with something which I may get angry with. So these are the few things which mindfulness started to open up within you. और mindfulness सर ऐसा नहीं है कि जर्नी पे निकले और कल सुबह ही आप बस पकड़ी और या प्लेन पकड़ा पहुंच जाएंगे आप डेस्टिनेशन पे. ये एक लंबी जर्नी है, इसको लगातार इतने मिलियन ईयर तक हमारी जो कंडीशनिंग हुई है उसको कुछ समय दीजिए निकलने के लिए. और थोड़ी सी डिफिकल्ट जर्नी है. जैसे मान लीजिए मैं जिम ज्वाइन किया सर बहुत साल पहले, तो मेरे जो ट्रेनर थे वो कहने लगे कि सर ऐसा है, मैं 2 महीने तक लगातार आया तो उन्होंने बोला कि आप ना अब 40% लोगों की गिनती में आ गए हैं. तो कहते हैं कि मैं जब 100 ज्वाइन करते हैं 2 महीने तक में 60% लोग चले जाते हैं छोड़कर. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है. तो मैं कुछ 1 महीना और कंटिन्यू कर गया तो बोले कि आप 20% लोगों की गिनती में आ गए हैं, क्योंकि 3 महीने तक जो है 80% लोग छोड़ के चले जाते हैं. तो
तो ये माइंडफुलनेस जर्नी ऐसी है कि आपको इस पे लगातार चलते रहना पड़ेगा। और मजे की बात है सर कि आपको इसमें जो इसके रिजल्ट जो हैं आपको वो बहुत इंस्टेंट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल आपको जी, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करनी है। राइट। एंड इट्स नॉट ओनली दैट वी आर टेलिंग पीपल, लॉट ऑफ लोगों को लगता है कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम कह रहे हैं कि माइंडफुलनेस हो जाओ भाई, माइंडफुल हो जाओ। ये एक्चुअली मैं सबको कहता हूँ कि भाई ये तुम लकी हो एक ऑर्गेनाइजेशन में कि तुम्हारे लीडर इस सब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं, बिकॉज इससे उनका कोई फायदा नहीं। उनका फायदा मान लो 5% होगा, बट बाकी 95% फायदा तुम्हारा होने वाला है इसमें, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव। राइट जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको आप कुछ ऐसे कुछ आपके एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको लगा कि जिनको आप बदल पाए और चेंज आया और जो बढ़ पाए आगे अपने काम में? देखिए क्या है कि उसके काफी एग्जाम्पल है। आज ये सुबह हमारी बातचीत हुई है, हमारे जो ब्रांच मैनेजर्स हैं जी जो गांव के अंदर वीवर के साथ काम करते हैं, तो ऐसे करीब 10 ब्रांच मैनेजरों पे मैंने काम करना शुरू किया। जैसे जैसे मेरे में चेंजेस आता चला गया, क्योंकि वो बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मेरे में जो चेंज आता है उसको बहुत जल्दी वो देख पाते हैं जी और मेरे से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि वो चेंज भी मेहनत मैं करता हूं लेकिन वो मेरे चेंज को देख के खुद में भी चेंज लाने लग जाते हैं। तो आज जब सुबह हम लोग इस पे माइंडफुलनेस पे थोड़ी बात कर रहे थे, क्योंकि आज आपका सेशन भी था, तो उन्होंने बताया कि मेरे में, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बट स्पेसिफिक एग्जांपल दिए कि मेरे में क्या क्या चेंजेस आए और उस चेंजेस से वो अपने काम में किस तरह के चेंजेस ला पा रहे हैं। अभी भी काफी लोग भी इसमें जुड़े हुए भी हैं। जी तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि काफी जो पुराने ब्रांच मैनेजर थे, तो वो पहले मैंने उनको पूछा भाई आप में क्या क्या चेंज आया, तो बोला कि पहले हम कमांड एंड कंट्रोल से बिजनेस चलाते थे। जी किसी भी व्यूवर को जाके हम लोग कमांड देते थे कि तू ये कर वो कर, और अभी हमें समझ में आ गया माइंडफुलनेस के बाद कि मुझे एज ए कोच काम कर रहा है, जी मुझे एज ए फैसिलिटेटर काम करना है, जिसके उसकी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को मैं बाहर ले पाऊं। वेरी गुड सर, तो वेरी आप ये देख लो ऑर्गेनाइजेशन में कितना बड़ा एक नया भविष्य बना देंगे वो लोग। ये तो एक तरह का, मैं कहूँगा ये एक तरह का रेवोल्यूशन है कि यदि हम आज एक कमांड कंट्रोल मानसिकता को छोड़ करके और एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर की तरह काम करें, एक टीम की तरह काम करें, तो आई थिंक जो दुनिया है सर वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मुड़ गई है। और हमें भी जल्दी मुड़ना है, क्योंकि आज हम ग्रस्त हैं अपनी मानसिकताओं के कारण, क्योंकि हमें इतने साल हम कमांड कंट्रोल से ही लगे और हमें लगता है कि शायद यही तरीका है। हमें हमें सिखाया गया कि स्पेयर द रॉट एंड स्पॉइल द चाइल्ड, हमें वही सब कुछ सिखाया गया। बट आज की डेट में हमें लगता है कि नहीं, यदि हमें काम कराना है, यदि हमें काम लेना है, तो हम एक सब्जेक्ट ऑफ, मैं लगातार अपने सेशंस में लेता हूँ, इंटरकनेक्टिविटी। यदि हम एक दूसरे से कनेक्टेडनेस समझेंगे अपनी, और सेम इमोशंस एंड सेम फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो रिलेशनशिप नॉट ओनली विद आपका और आपके वीवर का या आपके सप्लायर का, आप यू विल एबल टू इवन अंडरस्टैंड हाउ योर कंज्यूमर इज इवन थिंकिंग। द consumer is also a part of an organization because he contributes equally as an employee or as you as a organizer of everything, or even as a supplier. So we understand when we are mindful that we are part of the same organization, though the money may not be going from one pocket, but they all are getting benefited. So sir, एक सब्जेक्ट जो बहुत कॉमनली आता है कि आपने जैसे बोला कि कमांड कंट्रोल छोड़ करके कुछ ऐसी क्वालिटीज जो आपको लगता है एज ए माइंडफुल लीडर सब में होनी चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए मनीष जी, पता नहीं मेरी बात को कितना सारे लोग समझ पाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत अपने आप से करूंगा। ये माइंडफुलनेस की जो ही मेरी गहराई बढ़ती जा रही है, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एक आदमी का जो रोल होता है और एक आदमी की जो आइडेंटिटी होती है, उन दोनों को वो एक साथ मिक्स कर लेता है। जी तो फिर क्या वो जब आइडेंटिटी आदमी को जितनी याद है, जितनी गहरी आइडेंटिटी है उसकी, फिर उसको वो खोना नहीं चाहता जी कि लोग मेरे को क्या बोलेंगे। हर जी चीज से वो डरता है, लोग मेरे को क्या क्या बोलेंगे, कल जी कहीं कोई मेरी बदनामी तो नहीं हो जाएगी,
कोई हंसेगा तो नहीं, मतलब। जी तो मेरा ये मानना है कि जो आइडेंटिटी अपने जो बनाते हैं, और आइडेंटिटी बनाने से एक भय पैदा हो जाता है कि मैं उसको खो नहीं दूं। जी तो सबसे पहले माइंडफुलनेस जब आएगी तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो आइडेंटिटी आप जो बनाते हैं ये फॉल्स है, जी और आप अपने रोल से इसको मिक्स मत करिए। जी जो ही आप अपनी आइडेंटिटी को रोल से अलग अलग कर देंगे, आपकी एफिशिएंसी ना जी मेनी टाइम्स हो जाएगी, मतलब। जी वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात कही। इनफैक्ट मनोज सिंह हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा कि हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट आई एम बिकमिंग माइंडफुल एंड व्हाट कैन बी ए इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई दैट। तो आपने एक बोला कि हाँ आप आइडेंटिफाई ना करें अपनी आइडेंटिटी से, तो बहुत एक अच्छा एक एग्जांपल मैं देता हूँ इसमें कि आपने आर्मी के जर्नल्स देखे होंगे। जब तक वो जर्नल या पोजीशन में रहते हैं, वो उनके पास एक फटीक होती है, उनके एक गैलेंट होता है, उनके बहुत स्टार्स होते हैं, बट वो जब तब तक उनका एक अपना एक ऑरा होता है ना, जिसमें चलते हैं गैलेंट में। सडनली वो जब चला जाता है तो कई लोग उसको बहुत, मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में वर्ड है कि एलिगेंटली ले लेते हैं कि हाँ आई वाज दैट, नाउ आई एम ए न्यू पर्सन। बट कई लोग उस लॉस ऑफ आइडेंटिटी को ले नहीं पाते, दे कैन नॉट राइट। बिलीव दैट कि मैं अब वो नहीं हूँ क्या। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर अपना जीवन अपना मखौटा पहन के बिता देते हैं, अपनी रियलिटी परफेक्ट, को नहीं ढूंढ पाते। बिल्कुल जी। तो जब हम वो मुखौटा उतार के और घर में आकर के अपने नॉर्मल अपने आप को देख पाते हैं कि हाँ ये ही मैं हूँ एक्चुअली, हम्म। जिस दिन हम उस आदमी को देख पाते हैं कि हाँ ये एक्चुअली मैं हूँ, ये मनीष महल है, ये मिस्टर चौधरी हैं, जब हम इन सब चीज़ों को एक्चुअली पीछे हटा के अपनी पोजीशन को एक तरफ रख के अपने आप को देख पाते हैं, तो आई थिंक माइंडफुलनेस की शुरुआत तो पहले वहीं से ही हो जाती है। ठीक है जी। जी। मुझे लगता है दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मनोज आप भी पूछ रहे हैं कि आप में दूसरों के प्रति जो है ना वो एक दया भाव पैदा होना स्टार्ट होता है आपके। आपको राइट। लगता है कि जो मैं ऐसा कर्म करूं, जो मैं ऐसे एक्शंस करूं या मैं ऐसे थॉट दूं which should not hurt people, you know, I do not want people, you understand that these are the things I do not like people to do with me, so I should also not be doing with other people because they can also get hurt। परफॉर्मेंस में सर इतनी इसका इफेक्ट मैं एक छोटा सा आपको ऐड करता हूँ कि हाँ जी। ये एबिलिटी टू फोकस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप एक काम को फोकस से बहुत देर तक कर पाते हैं। जिस टाइम आपको लगता है कि मेरा अटेंशन आपको फ़ोन डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ज़्यादातर आप देखें कि आप बैठे होते हैं मीटिंग में, फ़ोन टिक टिक बचा, आप सबसे पहले आप अपना फ़ोन देखते हैं, अननोइंगली जेब में हाथ चला जाता है फ़ोन देखने के लिए। तो जिस टाइम आपको लगे कि हाँ मैं इस वक्त इस चीज़ को अटेंड कर रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है आज इस काम को करने की, जिस टाइम आपको ये लगना स्टार्ट हो जाएगा तो पहली इंडिकेशन है कि आपको माइंडफुलनेस आप पे काम करना शुरू हो गया। दूसरी इंडिकेशन ये है कि आप ऐसी आदतें जो आपको लगता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, चाहे वो राइट। देर तक सोने की, चाहे वो ऐसी आदत की मैं कहीं मुझे कोई गलत आदत है, मुझे सिगरेट पीने की आदत है, मुझे इसकी भी आदत है, मुझे उसकी आदत है, मुझे टीवी देखने की, और आप में क्षमता पैदा हो जाए कि आप कभी भी किसी भी आदत को छोड़ दें, तो ये दूसरी इंडिकेशन है कि आपकी माइंडफुलनेस स्ट्रांग हो रही है बिल्कुल। और आपको कोई परेशानी नहीं हो उस आदत को छोड़ने के लिए। राइट जी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे गुरु थे तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि भाई मैं माइंडफुलनेस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, तो उसने बोला कि आप क्या कर, मैं बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल करता था, तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए कि अपने बैग में हर ट्रिप में ऐसी 2 आइटम छोड़ दें जो आपको लगता है बहुत जरूरी है, और फिर पूरा ट्रिप करके वापस आए। और यकीन माने कि मैंने ये करना स्टार्ट किया और मुझे रियलाइज हुआ, मुझे कभी यदि वो पहले किसी समय यदि मेरे बैग में नहीं होती थी तो मैं अपने काम करने वालों पे या बहुत नाराज होता था या घर पे कि मतलब आपने वो क्यों नहीं डाली, पर अब की बार रह जाती है तो मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे उसके बिना। तो आपकी जो एडॉप्टेबिलिटी है, आपकी एक्सेप्टेंस है, वो सडनली बढ़ जाती है। राइट जी। ग्रेट। आपकी रिजिडिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको गुस्सा कम आता है। सबसे पहले तीसरी इंडिकेशन है कि आपको गुस्सा आना बहुत कम हो जाता है। आप सोचिए सर, एक मैं आपको हेल्थ का बेनिफिट बताता हूँ। हाँ जी। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे हार्ट बीट की क्या हालत होती है, तेज होता है कि हल्का होता है? बहुत बहुत तेज बढ़ जाता है। जी, हमारे दिमाग की नसों को क्या लग रहा होता है कि बहुत तेज चल रही है कि हल्की चल रही है? बहुत तेज हो जाती है।
यदि हम किसी भी आदमी से पूछे कि भाई तुम्हारा हार्ट बहुत तेज चल रहा है, दिमाग बहुत तेज चल रहा है, क्या तुम्हारी सेहत ठीक है, तो क्या बताएगा आपको? बच्चे से भी पूछ ले तो क्या बताएगा? तो वो यही बताएगा सर कि भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। तो माइंडफुलनेस सर सबसे पहले तो ये करता है कि ये जो आपकी हार्ट और दिमाग की तेज चलने वाली नसें है ना, इनको तो पहले शांत कर देता है। तो तीसरा बेनिफिट, जब आपको लगे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें आपकी धड़कन पहले बढ़ जाती थी, अब नहीं बढ़ती है, अब आप उसको कामली देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो थर्ड इंडिकेशन है कि आप पे माइंडफुलनेस धीरे धीरे काम करना स्टार्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है जो हम बात कर सकते हैं। सर एक सब्जेक्ट जो यूजली आता है वो आता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क में काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सी, I can play a game. I'm a golfer. I can alone play a golf. But if I don't have a 4 golf partners, I cannot enjoy a game. Similarly, I can be a very good football player myself. But if my team is not good, I cannot win any game. बिल्कुल जी। So it's very important कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव करना एक टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। और दूसरे टीम वर्क के साथ ये है कि आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तो आप वो पुराने मानसिकता से या पुराने सोच से आगे नहीं बढ़ सकते। तो यू हैव टू इनोवेट एंड क्रिएट। सो डू यू थिंक व्हेन यू ब्रिंग माइंडफुलनेस टू पीपल विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, देयर टीम वर्क इज इंक्रीजिंग, देयर माइंडसेट इज चेंजिंग? हाँ जी, ये तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि जैसे जैसे लोग शांत होते जा रहे हैं, माइंडफुलनेस आती जा रही है, एम्पैथी, कंपैशन एक अलग 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 लेवल पे जा रहा है, और वो अपनी नीड्स को भी अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और दूसरे आदमी की नीड्स को भी अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आदमी माइंडफुल नहीं है तो अपनी खुद की नीड्स को भी समझ नहीं पाता जी और न दूसरे की नीड्स को समझ पाता है, और उससे एक टीम स्पिरिट आती आती जा रही है। जी। एक सवाल सर विजय राठौर जी ने पूछा है कि व्हाट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ माइंडफुलनेस? अच्छा। हमारे साथ जर्नी पे जाने से पहले आदमी पूछता है कि ये बस जा कहाँ रही है फाइनली। टिकट कटाई नहीं कटाई। तो इस पे मुझे एक जोक याद आया कि एक पंजाब में एक बस जा रही थी, तो उस पे लिखा हुआ था, अमृतसर से लिखा हुआ था कि अपना पटियाला। तो वो एक औरत आई और ड्राइवर को पूछने लगी कि भाई बस कहाँ जा रही है? तो उसने बोला तुम आपको कहाँ जाना है? उसने बोला जी मुझे चंडीगढ़ जाना है। उसने बोला बस में बैठ जाओ। तो बोले कि भाई बस पे तो प्लेट तो पटियाला की लगी हुई है। तो उसने बोला कि आपको बस पे बैठ के जाना है कि प्लेट पे बैठ के जाना है? तो कई बार सर हम जीवन में सफर करने से पहले बात जरूर जानना चाहते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। विजय जी, माइंडफुलनेस की जर्नी जो है ना वो एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं। ये 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 इन डेप्थ है, ये एंड करती है जैसे वेदांतिक में वेदांत का कोई अंत नहीं है। वेदांत की आप उपनिषद पढ़ते जाएं, ये एक प्याज की तरह है, एक परत उतारते जाएं दूसरी परत निकलती जाती है। जैसे प्याज का कोई अंत नहीं है, ऐसे माइंडफुलनेस का भी कोई अंत नहीं है। इसको आप जितना गहरा जाते जाएं, जब आप निर्गुण निराकार हो जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि इसका तभी भी अंत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इसका अंत नहीं है, मुझे अभी तक नहीं मिला, और शायद मुझे मिलेगा नहीं। मुझे कुछ अगले कोई 300-400-500 जन्म और चाहिए होंगे जन्म ढूंढने के लिए, मिलेगा। बट इस जर्नी पे जाना जरूरी है। तो ये इस प्याज की तरह है जिसका पील उतारते जाएं और वो निकलता जाता है। दूसरा सवाल एक सुमन सिंह जी ने पूछा है कि कैन लिविंग प्रेजेंट बी माइंडफुल, बी अ माइंडफुल एक्सरसाइज? लिविंग प्रेजेंट इज एक्चुअली द रियलिटी। ओके, वी कैन लिव इन अनकॉन्शियस, मतलब हम एक गनूदगी में जी सकते हैं, हम एक अनकॉन्शियसनेस में जी सकते हैं। जैसे चौधरी जी ने बोला कि हम ज़्यादातर सब एक अनकॉन्शियस बिहेवियर में जीते हैं। यही जी माइंडफुलनेस का बेसिक जो फॉर्मूला है वो है लिविंग इन प्रेजेंट। हम कितना समय अपने दिमाग को प्रेजेंट में सैचुरेट करते हैं। हम जब हम उस मोमेंट पे लेके आते हैं, उसको देख पाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हम माइंडफुल हैं। यदि हम सपनों में, ख्वाबों में और घुमे हुए हैं थॉट्स में, और एक स्टडी में पाया गया कि ज़्यादातर हमारे जो थॉट्स हैं सर, वो 99% से लेकर के 80 से लेकर 99% हमारे थॉट्स जो हैं वो नेगेटिवली अलाइंड है, बिकॉज हम बिल्कुल सर्वाइवल पे बेस करते हैं। बिल्कुल। दिस वन, यदि हम कॉन्स्टेंटली हम
रूमिनेट कर रहे हैं पास्ट फ्यूचर में, तो ज्यादातर हम नेगेटिव ही थॉट रहे हैं। राइट। इसलिए विजय जी एंड सुमन जी, जो आपने सवाल पूछा उसका मैं एक छोटा सा आंसर आपको देता हूँ। It is said that you should take care of the moments. You should take care of the moments, and moments will take care of your life. वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो यदि आप अपने मोमेंट्स का ध्यान रखिए, बाकी जिंदगी आपका जो है ना, वो मोमेंट्स आपकी पूरी जिंदगी का ध्यान रखेंगे उसके बाद। बिल्कुल। तो सर एक सब्जेक्ट जो मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल पूछता हूँ। Lot of people say कि shall I start today, when will I get benefit? And this exactly happened when I was talking to one of a very big industry, and I was talking to that leader, and he says, you know, when you eat mangoes, do you think you start planting a seed that day, or you eat mangoes who somebody planted some 25 years ago? So I said, yeah, definitely somebody 25 years ago. He said, similarly, to eat the benefit of mindfulness, you have to plant tree today, so that in next coming years you should take benefit. Also today, when the crisis have come, you see lot of organizations have crumbled. वो डगमगा गए हैं, बंद होने के कगार पे हैं। पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो टिके हुए हैं। हाँ जी। और आप देखेंगे जितने ऑर्गेनाइजेशन आज टिक रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक माइंडफुल प्रैक्टिसेस काफी समय से स्टार्ट हुई है। एंड आई वाज टॉकिंग टू वन लीडर एंड ही सेड दैट टुडे वी आर सर्वाइविंग बिकॉज इन लास्ट फ्यू इयर्स वी इन्वेस्टेड अपॉन our practices on mindfulness, emotional intelligence, positive psychology, and today we are seeing this benefit. Right. So when we start practicing today, there will be challenges coming, but then you are preparing yourself for that challenge. आप आज चैलेंज के लिए प्रिपेयर करेंगे तो कल के लिए आप निपट पाएंगे, पर आज का चैलेंज कौन निपटेगा? जी जी सर, कुछ और आप अपने टीम को कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त? हाँ, देखिए मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि अभी आपने जो लास्ट में जो बात की, तो कोई अगर आज मेरे को पूछे कि जब आपने 42 साल पहले शुरू किया था जी, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था जी, तो मुझे याद आता है कि बचपन से मुझे ये स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, इन सब का काफी शौक था, मतलब। और मैंने एक किताब भी खरीदी थी, द ब्रीथ इज लाइफ। अच्छा। आज के मतलब 45 साल पहले जी। तो आज मैं देखता हूं कि अगर ये बिजनेस में 4-5 साल लेट शुरू करता जी, जब 42 साल पहले था, और मैं कहीं जाके किसी आश्रम में या कहीं भी जाके मैं माइंडफुलनेस अगर मैं पहले सीखता, समझता, अपने आप पे काम करता, तो शायद मैंने जो अपने जीवन में किया 70-80% जो मैंने किया, जो चेष्टाएं की, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। जी, बहुत सही कह रहे हैं सर। आई तो थिंक इस पे थोड़ा हमारे लोगों को आप थोड़ा और अच्छे से गाइड कीजिए। सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले तो आप जैसा नेता मिलना, देखिए वो बहुत जरूरी है। मैं यूजली हर आदमी को कहानी से बहुत ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई चाइना में शोलेन था, वहाँ पे एक उनके जो गुरु थे, जैन गुरु थे, वो सिखाया करते थे। तो जैन गुरु जो थे उसके बहुत सारे शिष्य थे, तो बहुत सारे शिष्य जो थे वो शराबी बन गए, ठीक है। पर एक शिष्य जो था वो वहाँ का सबसे माना हुआ जैन बन गया, और वो मास्टर आर्ट सिखाना स्टार्ट करा लोगों ने। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई ये आपके जो गुरु थे, उनके इतने सारे शिष्य थे, वो शराबी हो गए बिकॉज आपके गुरु भी शराबी थे, वो भी शराब पीते थे, और आप इतने अच्छे कैसे बन गए? तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने ऐसी चीज पे फोकस किया जो सही थी, कि हर मनुष्य में कुछ ना कुछ गलती और अच्छाई दोनों चीजें हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उससे क्या लेना चाहते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है पृथ्वी पे जो गलती नहीं करे, पर यदि हम उनकी गलतियों पे ध्यान देते हैं तो हमें वही मिलता है। अवर लाइफ इज व्हाट वी फोकस इज ऑन। तो यदि हम उनकी अच्छाइयों पे ध्यान देते हैं तो वी गेट व्हाट बेनिफिट वी गेट फ्रॉम देम, डिपेंडिंग ऑन कि हम दही मथ रहे हैं, उसमें से छाछ चाहिए कि मक्खन चाहिए हमारे पास। राइट जी। जी। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर कि अच्छी चीजों में भी बुराई ढूंढ सकते हैं। हम
चाहे तो कितनी भी बुराई ढूंढ सकते हैं, और हम बुरी चीज़ों में भी अच्छाई ढूंढ सकते हैं। हमें सबसे पहले ये करना है कि हमने अच्छी चीज़ों को ढूंढना है। राइट है जी। हमारे जीवन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे आसपास में, हमारे परिवार में, जब हम उन अच्छी चीज़ों को ढूंढते हैं और उनकी एक लिस्ट बनाते हैं कि ये मेरे जीवन की अच्छी चीज़ें हैं, अगले 30 दिन तक मैं लगातार ढूंढूंगा कि मेरे जीवन में अच्छी चीज़ें क्या हैं। तो आज का यदि सेशन मैं चाहूँ, और मैं आप लोगों को यदि आप कहूँ कि अगले 30 दिन तक एक किताब ले लें, छोटी सी कॉपी बुक ले लें, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सब अच्छी चीज़ों का एक नोट बनाएं, ब्यौरा बनाएं। बहुत अच्छा। ठीक है, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये अच्छी चीज़ है, मेरे बॉस में ये अच्छी खासियत है, मेरे पास ये है, मेरी वाइफ में, मेरे हस्बैंड में ये, मेरे एक कॉपी घर की बना लें, एक पेज बना लें और उसमें देखें, और अगले 30 दिन तक सिर्फ उन अच्छी चीज़ों को ही लिखना है। ठीक है, मेरा ईमेल है, और फिर मुझे आपने पोस्ट कर देना उन अच्छी चीज़ों को। ठीक है। तो फिर एक ये छोटा सा काम यदि करना चाहें तो एक फर्स्ट जर्नी आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि अच्छी चीज़ें ढूंढना है। दूसरा असर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मेंटल शार्पनेस लानी है। बुद्धि में जो जो तीव्रता है, जो इफेक्टिवनेस है, बहुत सारे लोग फील करते हैं कि नहीं मैं कर नहीं पाता हूँ, मैं डील नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए सर एक बहुत जरूरी चीज है, वो है इंटेंट। इंटेंट जो हमारे इच्छा शक्ति है सर। इच्छा शक्ति को मैं ऐसे दर्शाता हूँ कि आपके आसपास यदि जंगल होगा और यदि उस जंगल के पेड़ गिनेंगे और उन पेड़ों के यदि आप एक पेड़ को एक बीच से डिनोट करेंगे, तो ये जो पेड़ है वो तकरीबन पूरे जंगल के पेड़ इतनी बड़ी डिब्बी में आ जाएंगे। पर जब हम इसको बोएंगे जंगल को, तो एक पूरा जंगल क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी इच्छा शक्ति है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे जीवन का जंगल बनाती है, पर ये होती छोटी छोटी हैं इच्छाएं। तो यदि हम उन इच्छाओं की लिस्ट बनाएं कि हमारी एक्चुअली जरूरतें क्या हैं, व्हाट इज माई नीड्स, व्हाट इज माई डिजायर्स, और हम उसकी एक लिस्ट बनाएं और हमें देखें कि हमारी बेसिक नीड्स कहाँ तक जुड़ी हुई हैं, तो आपको दिखेगा कि मेरी नीड्स जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी इच्छाएं उतनी सारी नहीं है, बट हमारी मंशाएं जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक दूसरा ये भी काम कर सकते हैं सर कि अपनी इच्छाओं को लिखें, एज पर्सनल मेरी क्या इच्छाएं हैं, एज ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करना चाहता हूँ, राइट है जी, और मैं अपने को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ। राइट। यदि ये आप एक छोटी सी भी प्रैक्टिस अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगातार स्टार्ट कराएं ये वाली, तो देखिए इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और मैं बताऊंगा इसको कि साइंटिफिकली इसका क्या इफेक्ट होता है। अभी सर हमने मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग माइंडफुलनेस करना चाहते हैं, पर क्या होता है कि ये इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, लोग नहीं कर पाते, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल पाते। तो इसके लिए सर हमने एक बहुत मेहनत करके एक माइंडफुलनेस ट्रेनर प्रोग्राम स्टार्ट करवाया है। इसमें टीचर प्रोग्राम है, इसमें जितना भी ज्ञान है टीचर का वो सब दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को करें, टीचर बने, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएं, अपने डिपार्टमेंट में लाएं, और फिर सब लोगों को माइंडफुलनेस सिखाएं सर। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि वो लोग जाएं और साइट पर जाएं और देखें उसको, टीचर के प्रोग्राम को, और उससे सर ये फायदा ये होगा कि एक आप अपने अंदर माइंडफुलनेस ला पाएंगे, दूसरा जब आप खुद को टीच सिखा पाएंगे तो फिर आप दूसरे को भी सिखा पाएंगे। राइट। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आज की इस डॉक में कहना चाहता हूँ, ट्रस्ट सर। पहले मैंने बताई थी कि इंटेंशन, सेकंड डिजायर्स, एंड थर्ड इज ट्रस्ट। पहले हमारी इंटेंशंस क्या हैं, हमारी डिजायर्स क्या हैं, क्योंकि हमारी इंटेंशंस ही हमारी डिजायर्स बन जाती हैं। सही है जी। ट्रस्ट, तो पहला ट्रस्ट आप क्या अपने ऊपर, मोस्ट ऑफ टाइम हमारा ट्रस्ट अपने ऊपर ही कम होता है सर। सही है। तो जिस टाइम हम अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तब हम आसपास के एनवायरनमेंट पे भी विश्वास करना स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर हमारा विश्वास आसपास के एनवायरनमेंट से इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अपने पे विश्वास नहीं कर पाते। जब हम रात को जंगल में चल रहे होते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि हमें हमारा डर हमें जंगल पार करने देगा नहीं देगा। पर मान लीजिए आप रात को अंधेरे में चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ताकतवर हैं, आपके पास एक गन है या एक तलवार है, आपको डर नहीं लगेगा, बिकॉज आपको विश्वास है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है अपना ऊपर। इसी तरह हमारे जीवन की यात्रा भी ऐसी ही है, क्योंकि हम अपने आप को माइंडफुलनेस से इक्विप नहीं करते, वो टूल्स अपने पास नहीं आते, हमारे पास वो यंत्र नहीं है, तो हमें डर लगता है, हम आगे काम करते हैं जब एक दूसरे से। सही है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम एक दूसरे से डरते रहते हैं,
हम एक सैलो में काम करते हैं, वो उसको दूसरा नहीं दिखाएगा, दूसरा मेरे को नहीं दिखाएगा। मैं अपने 25 साल मैंने देखा, ये ज्यादा जनता की सारी एनर्जी जो है उसी में व्यर्थ चली जाती है। ये लुका छिपी करने से, मेल गेम खेलने से, एक ने मेरे को लिख दिया मुझे उसको लिखना है। तो ये प्रोग्राम एक बहुत अच्छी तरह से मैंने उनके लिए बनाया है, ये वाला जो टीचर प्रोग्राम है। हाँ जी, इन सब चीजों को दर्शाया कि कैसे इन चीजों से निकला जाए और इफेक्टिवली बना जाए। तो सर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एम्पैथेटिक बिहेवियर डेवलप किया जाए। तो थर्ड मैंने बताया सर कि ट्रस्ट बिल्ड करना। राइट। ये 3 चीजों पे यदि ध्यान दिया जाए, अपने लोग करते हैं, तो आप देखें कि आप धीरे धीरे आप में माइंडफुलनेस डेवलप होनी ऑटोमेटिकली बिल्ड होएगी। और फिर कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं, वो लगातार करें, तो मुझे लगता है कि जीवन में और ऑर्गेनाइजेशन में दोनों में बहुत बदलाव आएगा। बिल्कुल जी। जी, तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। तो मैं ओपन करता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, यदि किसी को कोई क्वेश्चन आंसर है। काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं और मैं लगातार जवाब देता रहा। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप, हम ओपन कर देंगे, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक अंकुर ने क्वेश्चन पूछा है, यू हैव एक्सप्लोर लॉट ऑफ रिसर्च ग्लोबली ऑन इम्पैक्ट ऑफ माइंडफुलनेस, कैन यू प्लीज लाइट ऑन सो that JR family, okay, family members, as that JR family member can also get it more clearly? Ankur, I think there are a lot of research work which has been done, and uh, if you take part in this program which I'm saying, there's a lot of research work I'm sharing in during this program, where all sort of research, both neuroscience based research, on psychological research, on genomic research, there are a lot of research data which I will be sharing during this program, and you see how it actually impacts not only your mental form but also your spiritual as well as your cognitive behaviors. So we don't go on a spiritual, but we talk about how cognitively you can actually improve your own self. If that is the answer. If there anybody else has a question, please feel free. You can ask. We can open, unmute everybody, and can ask to ask question. Chat. So there is one more chat. Somebody has said that how can we remind ourselves be in mindful state while doing task? Yeah, this is Mahavir Sharma has asked. Yes, this is a very good question, Mahavir. Most of the time when we work, we go in a state of flow. When we are working very well, we are deeply working, we go in a state of flow. Definitely during the state of flow, you don't require mindfulness because you are working in a deep state. You are working in a focused manner. But when you feel that you are getting distracted very easily, आपका जो ध्यान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसी चीज में फोन बजने पे दिमाग चला जाता है या आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, and that is the time you require mindfulness. The best way to come back is to connect back with a very simple thing. Just think that you are breathing. Just अपने पे ध्यान दें कि शायद मैं ब्रीथ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जैसे ही आप अपने वापस अपना ध्यान देंगे कि मैं ब्रीथ कर रहा हूं, आप माइंडफुल हो जाएंगे उसी वक्त। जी, और तो महावीर, मैंने कहा आपका जवाब दिया। और कोई चाहेगा कोई अपना सवाल पूछना तो आई थिंक वी ओपन फॉर इट। चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पॉइंट के ऊपर कि आपको क्या लगता है कि व्हाट यू थिंक? महावीर जी ने पूछा सवाल। देखिए मनीष जी, मतलब मुझे जो अपने लोगों के बारे में समझ में आ रहा है कि माइंडफुलनेस को अगर अपने मेजर करना चाहें, माइंडफुलनेस का इम्पैक्ट क्या है उसको समझना चाहें, तो एक कमरे में बैठ के ध्यान मतलब मेडिटेशन करना जी, और फिर काम में आके उसका असर देखना जी, तो वो जो मेरा काम है वो मेरा ध्यान बन जाए। जी,
और मेरा ध्यान ही मेरा काम 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 बन जाए। जी तो ऐसी स्टेज जब तक नहीं आती है तब तक आदमी फोकस हो नहीं सकता। जी तो आपसे मेरा एक ये सवाल है कि वो जो आदमी जो काम कर रहा है वो ही उसका माइंडफुलनेस या उसका मेडिटेशन बन जाए, जी उस स्थिति के लिए आदमी को क्या करे, कैसे सोचे हम लोग उसके बारे में? सर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हमारा काम ही हमारा ध्यान बन जाए। योग सूत्र इस पे बहुत डीपली काम करता है। देयर इज a scientist who really worked on positive psychology, uh, and and he talks about the three things which brings the productivity in people. One, definitely a level of his intelligence. डॉक्टर गोलमैन हैं जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत काम किया है. And while talking to him in one of our, when last time Ankur had also come in conference, we had a chat with Dr. Goldman on that. So two things very clearly came up. That one, you're able to focus on things if you are intentionally want to focus. But if you don't want to focus, there's nothing in the world can put you to focus. राइट। कितनी भी बढ़िया मूवी चल रही हो, यदि आपका मन नहीं है तो आप मूवी को आप इंजॉय नहीं कर सकते. बिल्कुल। कितना भी अच्छा खाना स्वाद खाना बनाओ, सब एंजॉय कर रहे हो, बट यदि आपका मन नहीं है खाना खाने का तो वो खाना आपको स्वाद नहीं लगेगा. सबसे पहली बात तो ये है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक इंटेंशन बनाना, एक मन बनाना, उस सब को एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे ये करना है. देखिए, सुबह सैर करना सबको अच्छा लगता है, पर उठना सबको अच्छा नहीं लगता. सही है। ठीक है, मैं अभी जितने भी लोग यहाँ हैं अपने, मैं सबसे पूछूंगा, सबको 5 बजे सैर करना, सुबह सुबह की धूप देखना, सुबह सुबह सूर्य उदय देखना, मॉर्निंग सनराइज होना, चिड़ियों की आवाज़ सुनना, ठंडी हवा खाना अच्छा लगता है? यस, अच्छा लगता है. तो सुबह 5 बजे उठना, जब ठंडी ठंडी जयपुर में ठंड हो रही हो, सब रजाइयों में दुबके हों, मैं बोलूँ 5 बजे उठ के सैर करना, जूते बाहर रखे हुए हैं, कितने लोग उठने को तैयार हैं? वही लोग नहीं उठ पाएंगे. तो ज़्यादातर हमारी तकलीफ ये होती है कि हमें लगता तो है वो करना अच्छा, बट हमारे में जो क्षमता है उसको करने की वो शायद नहीं पैदा कर पाते. तो पहले इंटेंशन पैदा करना. यदि आप में इंटेंशन नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती. राइट है जी। दूसरी है कि वी कॉल इट mental calmness, reduction of anxiety. The constant agitation of brain, is one of the culprit which do not let us focus. Right. This constant agitation is during this time of COVID, I felt that a lot of people were anxiety by the news. They're constantly checking news. कभी एक सोर्स से, कभी दूसरे सोर्स से, कभी टीवी पे, कभी the same news is coming, but they would like to get the more source of news. Reason being, Right. do not have that mental satisfaction. By reading news, nothing will change. But they do not have that mental calmness to go, and they won't bring the anxiety. They invite anxiety. They like anxiety, and that's why जितने भी सीरियल हैं वो आपको, जितनी भी न्यूज है, ये नहीं बताएगा कि मैंने और चौधरी साहब ने बैठ के चाय पी और अच्छी बात करी. ये न्यूज नहीं आएगी. ये पता चलेगा किसने किसका सिर फोड़ दिया, वो न्यूज आएगी वहां पे. सही है. Because we are more tuned to a negative data than the positive data. And that the more negative data आप लेंगे तो आपके दिमाग में एंजाइटी आनी नॉर्मल है. उसमें तो कोई साइंस ही नहीं है. कोई न्यूरो साइंस क्या बताएगा आपको. ये बात सही है. ठीक है. सो हमारी जो नेगेटिव न्यूज है ना, जैसे हमारा गॉसिप है, ऑर्गेनाइजेशन में गॉसिप हो रही होगी तो सब लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे गॉसिप सुनने के लिए कि हाँ अच्छा, हाँ बताइए क्या हुआ वहां पे. बट कोई अच्छी बात हो रही होगी तो कहेंगे यार ये तो ज्ञान सेशन है, हमें नहीं सुनना है. बिल्कुल बिल्कुल. So the point is that aligning ourselves with intention to change is very important. Second very important thing which I would like to add today, ready to face fear. Most of the time हमारा जो डर है, we are not able to face fear. हमें fears को deal नहीं कर सकते हम लोग. So I think that is the second aspect of learning mindfulness. Self-awareness, connecting with your own inner self. And I would say third thing very important, gratitude. Being thankful and being compassionate. Right. यदि 3-4 ये क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आप देखिए कि आपकी एबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, कनेक्शन बढ़ जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी. एंड एज ए लीडर यू विल फार
lovable leader than a commanding leader. राइट, आपको कमांड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। सही है, तो कमांड कंट्रोल की जरूरत कब पड़ेगी आपको? तो चढ़ेगी नहीं, मुझे लगता नहीं पड़ेगी कि बिल्कुल लोग वैसे ही मान लेंगे आपकी बात, क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी। So I think these are the points which I would like to make. So sir, I think thank you so much for your time, and there are a few more questions came in, but definitely we are running short of time now. I thank you so much that today you have taken time, sir, and we have a discussion. Time is changing. The world is now look more different after lockdown opens up. I know how we are all looking at how lockdown will open up. There will be an incredible opportunity to capture. I would say I will see every opportunity, every crisis is an opportunity in disguise. कि हर मुसीबत में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक नया एलिमेंट है लाइफ का जो हमें शायद देखने को मिलेगा, और हम फॉर्चुनेट होंगे कि इसको देख पाए। हमें दुख है कि जो कुछ लोगों को बीमार हुए, जो जान गई, बट हम जो लोग उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें लगातार करना चाहिए, उन लोगों के लिए जो लोग इस दुख से भीग रहे हैं। एंड माइंडफुलनेस कोई हिमालय पर्वत पे नहीं है जिस पे चढ़ने के लिए आपको तैयारी करनी है। आप इसी वक्त से, इसी टाइम से, सुबह ब्रश से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसके लिए कोई जिम नहीं चाहिए, इसके लिए कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, अमेजोन पे कुछ ऑर्डर नहीं करना है, बस सब कुछ आपके पास है। एक सांस लेने की जरूरत है ढंग से, एक गहरी सांस तो लो यारों, मैं तो कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। So that it starts from there, and collectively we can build a better world, build a better environment, build a better organization, make better leaders, and be mindful and open for the new folding and new possibilities in life. राइट जी। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ कहेंगे लास्ट में? तो मैं चाहूंगा कि एक दो शब्द कहें और फिर क्लोज कर दूं। नहीं, आज का बहुत बहुत अच्छा सेशन गया, और आपने जो अवेयरनेस दी है ये जयपुर को आगे ले जाने में बड़ी हेल्पफुल होगी जी। और आपसे कंटिन्यूस संपर्क में रहेंगे, सीख के और कुछ बढ़ेंगे। और आपका जो ट्रेनर का प्रोग्राम, उसमें एक को तो हमने रजिस्टर करवाया है, और नेक्स्ट में और काफी लोगों को करवाएंगे हम लोग। जी, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, बिकॉज वहाँ छोटी सी टीम, कम टीम रखी हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। तो हम चाहेंगे कि बहुत ज्यादा लोग आए और जुड़ें और इससे सीखें। और सबको आने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू जी।